सो फ्रेंड्स, आपको पता ही है कि पाकिस्तान के हालात आजकल किस तरह के सिचुएशन हुई है पाकिस्तान में। और जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं उनमें से ज़्यादातर लोगों को जिनको मैं जानता हूँ वो निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जाहिर सी बात है, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है वो अपनी वेल्थ को भी सेव करने की कोशिश कर रही होती है। और मैं जबकि दुबई की बारे में बात करता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ यहाँ के टूल्स के बारे में, यहाँ के प्लेटफॉर्म्स के बारे में, तो लोगों को एक्साइटमेंट होती है। और कुछ मुझको ईमेल्स भी करते हैं अपने इश्यूज़ से रिलेटेड। तो वो मैं जब मुझे वो इश्यूज़ समझ में आते हैं और वर्दी लगते हैं कि शायद ज़्यादा वाइडर ऑडियंस इस तरह के इश्यूज़ को फेस कर रही हो, तो मैं उन ईमेल्स को मैं पढ़ भी देता हूँ और उसके बाद उसका थोड़ा बहुत जो सॉल्यूशन मुझे समझ में आता है मैं वो भी बता देता हूँ। इस पर्टिकुलर केस के अंदर ऑल्दो कि शायद ये इतना वाइड टॉपिक ना हो, लेकिन फिर भी बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था, तो मैंने कहा इसको भी मैं इंक्लूड कर लूँ अपनी इसको Q&A के सेशन के अंदर। इसके अंदर एक साहब हैं, मैं आपको पहले ईमेल पढ़ता हूँ और उसके बाद बात करते हैं इसके बारे में। Dear Wali Khan, I hope this email finds you well. My name is Manam Nilera and I came across your insightful content on YouTube. I was particularly impressed by your expertise and professionalism in navigating the business landscape in Dubai. I'm writing to seek your advice regarding a personal and professional dilemma that my family and I are currently facing. Allow me to provide you with some background information, to give you better understanding of our situation. My wife recently received a promotion in her renowned company based in Dubai. She is now a regional, मैं उसका नाम नहीं ले रहा पोजीशन का, at a multinational company. As a result, our family made a decision to relocate from Pakistan to Dubai in, अब मैं month भी नहीं बता रहा और year भी नहीं बता रहा, अभी recent ही है. However, as a factory manager, I have not received a job offer in Dubai that matches my current professional competence and relevance. Despite patiently waiting for some time, again उन्होंने month mention किया हुआ है, मैं नाम again mention नहीं कर रहा कि कितने months हो चुके हैं. I haven't been able to secure position that would allow me to join my family and live together in Dubai. Understandably, our family is sacrificing precious time together by living in two different locations. My wife and my daughter are settled in Dubai while I continue to work in Pakistan. To address this issue, my family suggested that I leave my current successful career in Pakistan and start a business in Dubai. Financially, I am not anticipating any major difficulties, but I am unsure about the dynamics of Dubai and viability of this approach. Considering your experience and knowledge of business environment in Dubai, I would greatly appreciate your advice on this matter. Right now, we are able to save up to 15,000 dirhams per month, on which I can start something with it. I'm currently running an Amazon listing in the UK. That was a business I started during COVID just to explore the market. It's still operational and at the break-even point. I can scale it and I can scale it, but it will be a very small portion. I I have also made a feasibility study of property business in Dubai by down payment of 20% and scaling it to multiple properties. Also, in the past, I had started Kareem business in Pakistan, but due to frequent changes in business policies of company, it didn't remain a profitable business for car owners. Thank you in advance for your time and guidance. Your insight would provide much needed clarity and assist me in making informed decision that is that is the best interest of my family's well-being. I look forward to your response and sincerely appreciate your assistance. So थोड़ी लंबी ईमेल थी, लेकिन टू गिव यू एन आइडिया, थोड़ा सा मैंने इनसे टू एंड फ्रो भी किया, थोड़ी सी मैंने और बातें भी पूछी, इनको मैंने अपने हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा था वो बता दिया था मैंने। लेकिन अब इन फॉर जनरल पब्लिक एंड वाइडर ऑडियंस, आई वुड लाइक टू लेट यू नो कि ये एक साहब हैं जिनकी वाइफ को एक जॉब मिल गई थी कुछ अर्से पहले दुबई में, और काफ़ी अच्छी जॉब थी, जिससे वो ऑलमोस्ट 15,000 दिरहम सेव भी कर पा रहे हैं। इन्होंने सेव का वर्ड लिखा है, यानी कि वो उनकी इनकी सैलरी प्रॉब्ली ज़्यादा होगी और वो इतने पैसे सेव कर पा रहे हैं। उनकी एक बेटी भी है जो कि दुबई में उनकी वाइफ के साथ रहती है, तो ऑफ कोर्स इस तरह से रहना अलग फैमिली का बहुत मुश्किल होता है। वो पाकिस्तान में एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, बाय द वे उन्होंने मुझे बताया ऑलमोस्ट 350,000 रुपीज़ पाकिस्तानी वो वहाँ पर अर्न कर रहे हैं अच्छी कंपनी के अंदर, जो कि स्टेबल जॉब है। अच्छा, ये ईमेल की डिस्क्रिप्शन के बारे में तो मैं अभी बात करता हूँ, लेकिन क्योंकि आप एक अमेज़न पे भी काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर का काइंड ऑफ आपका जॉब है, तो मैं आपको कहता हूँ कि बेस्ट इन क्लास आपको हार्डवेयर लेना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली मैंने एक अमेज़न से ये ऑर्डर किया था मैकबुक प्रो, बहुत सस्ता मुझे मिल गया था मार्केट प्राइस से। तो मैं ये कहता हूँ कि इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप प्लीज़ जाके उसको देखिएगा। मैं जब भी अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, तो मैं जो भी चीज़ें यूज़ कर रहा होता हूँ
अपने डेली रूटीन के अंदर मैं उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू भी दे देता हूँ, थोड़ा सा उसकी प्राइस के बारे में आइडिया भी देता हूँ। इसकी प्राइस वगैरह नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। यूएई के अंदर रहते हुए अमेजोन के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, पूरी दुनिया में कहीं भी हो तब भी वो लिंक जो नीचे आपको नजर आएगा वो कहीं भी चलेगा। और ऑफ कोर्स वो एफिलिएट लिंक है, तो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी मिल जाएंगे इन केस आप वहां से ऑर्डर करते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द एनालिसिस जो मैंने अभी आपको ईमेल पे बताया था। और भी कुछ पॉइंट्स थे इसके अंदर जो मैंने उनसे डिस्कस किए थे, मैं अभी जब बात करूंगा तो शायद उसके बारे में बात हो जाए। तो पॉइंट ये है कि उनका कि सबसे पहले अगर बात करें जो आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं बिजनेस करना शुरू कर देता हूँ, तो मैंने उनको स्पेसिफिकली बिजनेस के लिए मना कर दिया था कि आप एटलीस्ट जो आप सोच रहे हैं ना ये प्रॉपर्टी का बिजनेस, और जो लेट्स से जो आप करीम का बिजनेस की बात कर रहे थे, तो इसमें बहुत सारे कैविएट्स होते हैं। वो इतना इजी नहीं होता जितना इतना आसान लग रहा होता है कि 20% डाउन पेमेंट कर दें, एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं, फिर दूसरी प्रॉपर्टी 20% डाउन पेमेंट के साथ करते हैं। हमने देखा है अभी रिसेंटली, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं उसके ऊपर कि किस तरह से कनाडा के अंदर जब वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना शुरू हुए थे, इवन यूएस के अंदर, तो लोगों की किस तरह से प्रॉपर्टीज जो है ना कॉन्फिस्केट होना शुरू हो गई थी, फोरक्लोजर शुरू हो गए थे। और इतना ज़्यादा बुरा हाल तो नहीं हुआ था जितना 2008 में हुआ था, लेकिन फिर भी एक बड़ा रिस्क होता है अगर आप इसी को अपना कैश फ्लो जनरेट करने की मशीन समझने लगते हैं एक प्रॉपर्टी को। हाँ, एयरबीएनबी करते हैं, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। लेट्स से आप 4% के ऊपर, 5% के ऊपर आपको बैंक मॉर्गेज कर देता है, आप उसके अंदर 10 से 11, 12%, 13% भी रिटर्न कर सकते हैं। कुछ टाइम गुजारते हैं, अगली प्रॉपर्टी ले लेते हैं, ये एक साइकिल चल सकती है। लेकिन इसमें बहुत सारे कैविएट्स हैं, लाइक इंटरेस्ट रेट्स का नहीं पता, इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो सकते हैं। लाइक दुबई का नहीं पता, हो सकता है यहाँ पर अगेन कोई प्रॉब्लम आ जाए, रीजनल लेवल के ऊपर कुछ हो जाए। ऑल्दो कि लग नहीं रहा कि कोई बहुत मेजर इशू आएगा, लेकिन ये आपकी अपनी लाइफ की बारे में बात हो रही है। हम जब नॉर्मली इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो हम डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर कंप्लीटली अपने जो सिचुएशन है, अपने आप को पूरा का पूरा यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आपने करीम की बात की, तो करीम के अंदर यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो यहाँ पर ये बिजनेस कर रहे हैं कि गाड़ियाँ रेंट पे दे देते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं। इट इज़ गुड बिजनेस ऑन फेस ऑफ इट, लेकिन आपको मैं बताऊं इसके अंदर भी बहुत सारे कैविएट्स होते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पर बिजनेस मॉडल है उसके अंदर आपको गाड़ियाँ जो आपको देनी पड़ती हैं वो आपके नाम पर नहीं होती हैं, गुडविल पे सारा काम हो रहा होता है, ड्राइवर्स भी गुडविल पे चल रहे होते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए। ठीक है, एक किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं, एक गाड़ी लगा दी, दो गाड़ी लगा दी, लेकिन अगेन उसके ऊपर आप अपना पूरा बिजनेस सेटअप कर दें और डे वन से स्टार्ट कर दें, तो वो मैं रिकमेंड नहीं करता। अमेज़न का बिज़नेस इट इज़ गुड, अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको स्केल भी कर सकते हैं, जो कि आपका कम से कम टाइम में आप वर्चुअल असिस्टेंट्स रख सकते हैं उसके लिए, और उसके अंदर प्रोबेबली आपको वो ग्रोथ करके दे सकता है, तो उसको मैं कहूँगा कि आप कंटिन्यू रखें। अब जहाँ तक बात है कि आपने बताया था कि आपकी 3.5 लाख रुपए सैलरी है, आप यहाँ पर आ सकते हैं जॉब छोड़ के, तो देखें 3.5 लाख रुपए सैलरी जब आपकी फैमिली वहाँ पर थी और प्रॉब्ली आपकी वाइफ भी काम कर रही थी, तो हाउस होल्ड इनकम 7-8 लाख रुपए शायद बन रही होगी, या लेट से 6-7 लाख रुपए तो बनी रही होगी। जब इतनी पैसे आप बना रहे थे और फैमिली पाकिस्तान के अंदर थी, तो उस वक्त आपको अपनी जॉब से जो पर्क्स मिल रहे थे, लाइक आपको गाड़ी मिली हुई है, लाइक आपको इंश्योरेंस फैमिली की मिली हुई है, या इस तरह की और चीज़ें मिली हुई हैं, उनका भी फायदा हो रहा था। वरना आपके टैक्स तो पे कर ही रहे हैं आप पाकिस्तान के अंदर। अब जबकि आपकी फैमिली मूव हो गई है, तो हो सकता है आपको सिर्फ और सिर्फ आपके पेरेंट्स की मेडिकल मिल रहा हो, और आपका जितना बाकी मेडिकल है या बाकी जो पर्क्स मिल रहे थे आपको, वो हो सकता है आपके काम भी ना आए। आपकी गाड़ी आपके किस काम की, जब आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऑफिस जाने के लिए, आने जाने के लिए यूज़ करनी है। इसके अलावा आपके मेडिकल किस काम का, जब आपकी फैमिली दुबई में बैठी हुई है और दुबई में ही वो मेडिकल यूज़ कर रहे हैं, उनका अपना होगा। तो इसलिए ये तो आपको जो एडिशनल पर्क्स हैं वो तो किसी काम के नहीं है। आपका जो एक्चुअल फ़ायदा है वो बेसिकली आपकी सैलरी है, और सैलरी 3.5 लाख रुपए बताइए आपने, जिसमें से आई डोंट नो कि आजकल टैक्स रेट क्या चल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 50,000 रुपये तो टैक्स में ही शायद चला जाता होगा, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो लेट से आपको 3 लाख रुपए हाथ में आते होंगे, या शायद इससे कम। सो अगर 3 लाख रुपए को कन्वर्ट करें रुपये के अंदर, तो वो बनते हैं ऑलमोस्ट 3,700 तो 3,700 के लिए आप अपनी फैमिली से दूर बैठे हुए हैं। अच्छा, ये जो मैं आपको जितनी बातें बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी बातों को फेस वैल्यू पे ना लें, मैं सिर्फ एक एनालिसिस करके सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। डोंट टेक योर डिसीजन ऑन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट आप उसको एनालाइज कर लें और फिर अपना डिसीजन लें। लेकिन अगर कोई और बंदा मुझसे पूछता कि 3 लाख रुपए की सैलरी छोड़ता हुआ मैं दुबई आ जाता हूँ, मूव कर जाता हूँ फैमिली के साथ, तो मैं कभी भी उसको नहीं बोलता। लेकिन क्योंकि आपका केस डिफरेंट है, आपकी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, जबकि आप 15,000 सेव कर पा रहे हैं, और आपके अपने सिर्फ और सिर्फ 3,500 या 3,700 आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के बना रहे हैं, तो इस पूरे सिनेरियो में मुझे फील होता है कि आपको दुबई मूव कर जाना चाहिए।
और यहाँ पर आकर लेकिन कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, आपको जॉब ढूंढनी चाहिए। और आप, क्योंकि मैंने आपका थोड़ा सा प्रोफाइल देखा था, तो आपको जॉब मिल सकती है। आप जॉब ढूंढें, लेकिन उसमें टाइम लग सकता है, आपको 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्राइव करना है। आपकी अच्छी बात ये थी कि आपने मुझे बताया था कि आपकी जो मैक्सिमम सैलरी एक्सपेक्टेशन थी वो 10 से 15 हज़ार दिरहम थी, विच इज़ गुड। बिकॉज अगर आप इनिशियली 25 हज़ार दिरहम की सैलरी एक्सपेक्टेशन लेकर आते, मिल भी सकती है जॉब इतने की, लेकिन हो सकता है वो ना मिलती और फिर आप बाद में जा थोड़ा सा उसमें आपको उतना अच्छा फीलिंग नहीं आती जितना आप को एकदम से, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन लो होती हैं, फिर आपको जब ज़्यादा मिलता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप मूव कर जाएँ दुबई, आप जॉब्स ढूँढने लगें, इन द मीनवाइल आप अमेज़न का बिज़नेस को स्केल करना शुरू कर दें, हो सकता है उसी के अंदर आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाए, लेकिन जॉब ढूँढना शुरू करें, जॉब अभी से अप्लाई करना शुरू करें, वहीं से बैठे हुए पाकिस्तान से। जॉब में यहाँ पर दुबई में लोग कहते हैं कि मूव कर जाना चाहिए और फिर जॉब मिलती है। कुछ केसेज़ में सही भी है, लेकिन बहुत सारे केसेज़ में मैं ऐसा भी देखता हूँ कि पाकिस्तान में बैठे-बैठे ही आपको ऑफ़र आ जाती है। तो इसलिए, लेकिन आपके केस में अगेन एज़ आई सेड कि आपकी फैमिली यहाँ पर है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव अपार्ट, जबकि आपके पास कोई इतना बड़ा मसला ही नहीं है। आप 15,000 दिरहम अगर आप सेव कर रहे हैं, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप आराम से यहाँ पर मूव कर जाएँ, करियर आपका डेफ़िनेटली बनेगा। और ये जो बाकी के बिज़नेस आइडियाज़ हैं, ये आप जब आपकी कैश फ्लो जनरेट होना शुरू हो जाए, उस टाइम पर आप फिर ये स्टार्ट कर सकते हैं अपने वेंचर्स को। लेकिन अभी आपको मेरे ख़्याल से बिज़नेस की तरफ नहीं देखना चाहिए, अपनी जॉब की तरफ देखना चाहिए और अमेज़न को फ़ोकस करना चाहिए। बाइंग वर्सेस रेंटिंग के ऊपर एक वीडियो बनाई थी दुबई में रहते हुए। अगर आपको आप दुबई मूव करेंगे और आपको ये सोचना है कि बाय करना है प्रॉपर्टी या रेंटल पे जाना चाहिए, तो उसके बारे में मैंने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई थी कैलकुलेशन के साथ। यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया, उसको जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने जेबीसी के एरिया की एक प्रॉपर्टी टूर किया था, जो कि मैंने हॉलिडे होम के बारे में बताया था, जिसमें यहाँ पर उसका लिंक लगा दिया। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।